नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज का सेशन विमेन एमएसएमईज के नाम रहने वाला है। आखिर विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देकर कैसे ग्रोथ को गति दी जा सकती है, इस पर हम फोकस करेंगे। साथ ही महिला उद्यमियों के सामने बदलते दौर में मौकों और चुनौतियों का हम जायजा लेंगे। इस सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं के रमा देवी, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया एलीट। साथ ही मौजूद हैं अनीशा मोटवानी, ब्रांडिंग एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट, फाउंडर एसटीएन वेंचर्स। इनकी हाल ही में ये बुक शी स्टॉर्म्स द नॉर्म्स आई है। इसमें विमेन एमएसएमईज के लिए क्या लर्निंग्स हैं, हम इसको जानेंगे। फिलहाल आइए बातचीत को शुरू करेंगे रमा जी से। रमा जी, ये दौर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का है। ऐसे में उद्यमी इसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस समय विमेन लेड एमएसएमईज की वर्किंग को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? Most important, opportunities are more now because of digital literacy programs and involvement of government in promoting e-commerce as a platform for marketing products. It is very relevant for women development and women entrepreneurship development. So the policy of the government is very women friendly, I can say, because if you look at the data and statistics, women labor force was who are involved in certain activities about 19.5%. Today it is 38.5. That means there is a growth. This is because of Nari Shakti programs introduced by Government of India in various ministries. And also, particularly, women education has taken a very big stride in our country towards development of women entrepreneurship, participation of women in various activities. I don't say that, this was a picture even 10 years back, but now the recognition of women entrepreneurship is taking off and various opportunities are provided. Digital tools play a vast and important role for promotion of this women acceleration programs. रमा जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के साथ इंडिया को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाने की कोशिश है। इन डेवलपमेंट्स के बीच आखिर विमेन एंटरप्रेन्योर्स की भागीदारी को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? Actually, women's participation is, as I said, now with GME registration, many women are given an opportunity to showcase their products and take advantage of various schemes introduced by Government of India. This GME registration has done the miracle, like bringing unorganized into organized. So this is a tool which is helping them to build up their capacities. If it is properly taken, if they properly take advantage of it. The other thing, as you said, Make in India is the slogan today. And we're having a vast population. Our consumers are women. And we feel that even manufacturers can also become women. So most of the purchases are done by women in various, various backgrounds. Even the manufacturer facility also now earmarked towards women. The development is not possible if 50% of the population are not involved into the economic activity. Every country world over is recognizing this important angle, and they are focusing on inclusive growth and development activities which promote women entrepreneurship and also women as even workforce. अनीशा जी, many congrats for She Storms the Norms. आपने अपनी बुक में कई इंस्पायरिंग स्टोरीज को डाइवर्स फील्ड से कवर किया है। इन्होंने कई नॉर्म्स को तोड़ा है, जैसे कि सोसाइटल, स्ट्रक्चरल या फिर बात करें सेल्फ बिलीफ की। पर जहां तक एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, ये कई बार काफी लोनली जर्नी बन जाती है। आप अपने इंटरैक्शन से कोई खास लर्निंग्स विमेन एमएसएमईज के साथ शेयर करें ताकि वो अपने कारोबार को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। थैंक यू सौरव, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, क्योंकि अभी काफ़ी काम जो मैं डाइवर्सिटी के एरिया में कर रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट कि जो बुक्स में स्टोरीज कवर कर रही हैं, बट ऑल्सो
working very closely with a lot of medium small enterprises. एक आपने बहुत ही सही बात बोली कि ये जो जर्नी जो है ये बहुत लोनली जर्नी है। इसमें यू विल हैव मेनी पीपल हु विल बी योर क्रिटिक्स और बहुत कम लोग होते हैं जो आपके दोस्त होते हैं। तो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम की भी एक जर्नी है, माइक्रो से स्मॉल जाना, स्मॉल से मीडियम जाना, और हर स्टेज पे आपको इतने क्रिटिक्स मिलेंगे जो कि आपको कोशिश करेंगे बोलने की कि क्या ठीक नहीं है, यू कैन एक्चुअली जस्ट डू दिस बेटर। बहुत लोग हैं जो आपको बोलेंगे यू कैन डू दिस बेटर, या ये तो शायद चलेगा नहीं आपका। तो एक परसिवरेंस और एक जो लगे रहने की एक जो जुनून है ना, क्योंकि सपना आपका है। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक ड्रीम, एक विजन से स्टार्ट करते हैं। तो आपका सपना है, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सपने में आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते, तो आप कैसे, सबसे पहले तो ऐसे लोगों को आपको अपने नेटवर्क से बाहर करना होगा। और ये एक बहुत डिफिकल्ट स्टेप होता है, क्योंकि लोगों को जोड़ना आसान होता है और कुछ लोगों को अपने नेटवर्क से बाहर करना बहुत मुश्किल होता है। So if they are not part of your vision and if they are not part of your dream, you should not be entertaining them. दूसरा, having said that, उतना ही जरूरी है to have a close group of mentors and people who will be your well wishers. एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम को साथ में बहुत जरूरी होता है रखने के लिए, बिकॉज और कोई साथ रहे ना रहे, बट अगर आपका फैमिली आपको बैकअप करता है, अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपको फिर वो एक ऑलमोस्ट लाइक दिस विंड इन योर सेल्स टू एक्चुअली गो फॉरवर्ड एंड कीप डूइंग इट। अनीशा जी, आप ये बता सकें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए कैसे कदम बढ़ाना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बेस्ट प्रैक्टिसेस बहुत है इंडस्ट्री में। जैसे मैम ने कहा कि आजकल नेटवर्क्स हैं, फोरम्स हैं, यू हैव टू बिलोंग, यू हैव टू सी कि और क्या हो रहा है, और लर्निंग्स कहीं से भी आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग्स आपकी इंडस्ट्री के, अगर आप एक इंडस्ट्री के एजुकेशन के हैं तो लर्निंग सिर्फ एजुकेशन से आएगी। तो हम जो स्टॉर्म द नॉर्म में जो काम करते हैं वो ये कहते हैं कि लैटरल लर्निंग जो होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि अगर आप अपनी इंडस्ट्री से लर्न करेंगे तो आप दूसरे से थोड़ा बेहतर ही कर पाएंगे। आप देखेंगे कि किसी ने कुछ किया है, आप उन्हीं से सीखेंगे तो आप उनसे थोड़ा अलग या बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री या कंप्लीटली डाइवर्स एरिया से लर्न करेंगे तो आपको कुछ ऐसे इंसाइट्स मिल जाएंगे जो कि आपके बिजनेस में विल हैव अ डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है कि क्रॉस लैटरल लर्निंग किया जाए। रामा जी, इस डिजिटल दौर में एक ऐसी स्पेस जहां काफी हलचल हो रही है वो है ई कॉमर्स। इसमें एमएसएमईज, खासकर विमेन एमएसएमईज के लिए कई मौके हैं। रिमोट रीजन से लेकर ग्लोबल बाजारों के इस सफर को आप कैसे देख रहे हैं? There's a great opportunity because regional trade has become very important now, particularly when we talk about women entrepreneurs. You know, there's like what Manisha said, you know, that having associations working together, networking, all these are important, and the policy of the government is also important. Under international cooperation, there is various opportunities provided for MSMEs, particularly to showcase their products and have a matchmaking, exchange of ideas, and also collaborative businesses can happen. There is also a great prospectus for rural women entrepreneurs, particularly in by introduction of GEM portal. Now they have an idea that GEM is going to be developed as an international e-commerce platform. So government is thinking of GEM in getting introduced, because there are e-commerce platforms where women can put their products and market, but a percentage of payment which they have to forego if they have to get into a private e-commerce platform is not affordable. रमा जी, देयर इज नो डाउट एक्सपोर्ट बाजार में कई मौके हैं, पर विमेन एंटरप्रेन्योर्स को किन एस्पेक्ट्स पर काम करना चाहिए ताकि इन्हें टैप किया जा सके? किस तरह की हैंड होल्डिंग की आप उम्मीद कर रहे हैं? Import and export is made possible. Before we talk about marketing, there are various other aspects which we as a women entrepreneurs need to learn to get into exports or international markets, is to strengthen our manufacturing area by adopting standardization and quality certification. These two things are very important when we want to explore other markets. That kind of training is required, and also adopting the digital tools is also important to understand how to put your product on the
platform, and also how to write about the product content, and everything is important when you showcase. It's less expensive, but learning is the skill which they have to take up. So this is what we need to focus for promotion of women, rural women into international trade. And various small aspects are also like to minimize the cross-border hurdles is also the policy intervention required from government. So these hurdles are, I mean, we talk about the whole world as a global village. So here we need to minimize these issues. अनीशा जी, जब हम बात ई कॉमर्स की कर रहे हैं तो डिजिटल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। एमएसएमईज इस तरफ बढ़ तो रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर कई बार वो जिस तरह के रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं वो हासिल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में किस तरह के स्ट्रक्चर्ड तरीके को अडॉप्ट करना सही रहेगा? आपकी क्या सलाह होगी? तो देयर आर 3 पार्ट्स टू दिस। एक चीज होती है प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं देयर आर 3 E's इन डिजिटल। एक है एफिशिएंसी, एक है एक्सपीरियंस, एक है एंगेजमेंट। ना एफिशिएंसी सबसे पहले आती है कि क्या आपको समझ आ रहा है कि आपके जो डिजिटल प्रोसेसेस जो हैं आजकल कितनी चीजें ऑटोमेट करना और उसको एक डेटा को यूज करके कि कस्टमर पहले क्या देखता है, बाद में क्या देखता है, वो सारी चीजें ध्यान में रख के आप पहले एक एफिशिएंट ऑटोमेशन प्रोसेस क्रिएट कीजिए अपने प्रोडक्ट का। दूसरा जो चीज होता है वो होता है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस है कि एक बार अगर आपने ऑटोमेट कर दिया, लेट्स से आपने अपने डिजिटल एसेट्स बना दिए, आपके पास थर्ड पार्टी के पोर्टल्स हैं जहाँ पे आपका प्रोडक्ट डिस्प्लेड है, क्या आपके पास अपनी वेबसाइट है, वो मोबाइल वेबसाइट है कि इंटरनेट वाली वेबसाइट है लिटरली, दे बिहेव वेरी डिफरेंटली। अगर आपका बिजनेस मोबाइल पे होता है तो मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट बनाया है आपने, और आपने ऐसा वेबसाइट बनाया है जो कि अडेप्टेबल है अक्रॉस 2 प्लेटफॉर्म्स। तो ये वेबसाइट, और उसके बाद अगर चलो वेबसाइट नहीं भी है तो क्या आपके पास अपने सोशल मीडिया पेजेस हैं, क्योंकि सोशल कॉमर्स आजकल बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। तो आपका अपना वेबसाइट नहीं भी है तो अगर आपका एक बैकएंड डेस्टिनेशन है तो आप किसी भी सोशल मीडिया पेज के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं और आपका एक डेस्टिनेशन पे आप उसको ले जा सकते हैं, चाहे वो डेस्टिनेशन थर्ड पार्टी का क्यों ना हो। तो ये सेकंड पार्ट है विच इज द एक्सपीरियंस पार्ट। और इस एक्सपीरियंस में भी जैसे कि मैंने आपको कहा बहुत जरूरी है ये एक्सपीरियंस कस्टमर की जर्नी को, परचेज जर्नी को समझ के करने के लिए। और ये सिर्फ B2C की बात नहीं है सौरभ, आपने कहा B2C में, आई थिंक बहुत जरूरी है ये B2B के लिए भी। अनीशा जी, तो हमने डिजिटल मार्केटिंग के 2 E's, एफिशिएंसी और साथ ही एक्सपीरियंस की बात की है। अब आप एमएसएमईज के 3rd E, एंगेजमेंट के बारे में भी बता सकें। तो अगर आपने अपने जो डिजिटल एसेट्स बनाए हैं उसमें अगर आपने एंगेजमेंट बिल्ड किया है, फीडबैक, रिव्यूज, कॉन्वर्सेशंस, टेकिंग रिस्पॉन्सेज बैक, और अगर आपने स्मार्ट इंटेलिजेंट अपने डिजिटल एसेट्स बनाए हैं तो ये एंगेजमेंट जो है वो करना और उसको मेजर करना काफी आसान हो जाता है। सो ये तीनों ईज पे ध्यान रखना है सौरभ। रमा जी, आइए आगे बढ़ते हैं। सभी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, PSUs को एनुअल प्रोक्यूरमेंट का 25% MSE से लेना होता है। ये आंकड़ा तो 35% के पार है, दैट्स ग्रेट। पर वहीं इसमें जो सब टारगेट 3% का विमेन MSEs के लिए है, ये आंकड़ा करीब 1.23% है। ऐसे में इस प्रोक्यूरमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? When we look at the whole scenario, women are more unorganized. They have to become organized. Like they should have a proper certifications and what we call Vujjami registration, and also come into force like SHGs becoming SMEs. This is the key word for many state governments today. Self-help groups into SMEs, because the PSU's requirement is totally different. What they require is a little bit of technology interventions are required and certifications are required, and also able to supply in bulk. This is a big issue because whatever women, the capacity of women, due to various roadblocks, in the system, they are not able to become suppliers for big PSUs. The reason is financially also they are not having that capacity.
And also the technology transfer doesn't happen in many cases. They can change the whole thing if it 3% is given to them, particularly in sectors like textiles, food processing, and also digital and also electronic few services. If it is earmarked for women, I think 3% is not enough. They can reach 50%. We can create a pool of women entrepreneurs and also make them clusters and supply to the PSUs, particularly to the defense, railways. This has to be taken from women entrepreneurs. Enactment has to come so that the encouragement of women participation will be really has some impact. अनीशा जी, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक फाइन बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है बिजनेस और फैमिली के बीच। आपने जिन स्टोरीज को फीचर किया उनके साथ इंटरैक्शन में ऐसी कोई खास बात या कोई स्ट्रैटेजी जो उन्होंने अडॉप्ट की हो और वो विमेन एमएसएमईज के लिए हेल्पफुल हो सकती है? One thing that actually I have seen, Saurabh, that has worked in women after women after women is when women say, like I say, I'm a brand builder and a marketer first and a women later. Somebody will say, I'm an astronaut first. We have Ritu Karadiyal, a lady, she was the ISRO mission director for Mangalyaan, जिनके ऊपर मूवी भी बनी है, Rocket Women of India बोलते हैं. She comes from a small town in Lucknow. You read her story. अब वो कहती हैं कि I am a scientist first and I am a woman later. Now, the minute you take that mindset, कि first I am my, what is expected of me. I'm a doctor first and then I'm a woman later. I'm an educationist first, I'm a woman later. Then you will actually prioritize your mindset and thinking accordingly. Because if you're expecting the world out there to be equal, then you need to be equally responsible for your professional responsibilities. So for me, that is something that came out very strongly in the stories that I heard. हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हम आज फोकस कर रहे हैं विमेन एमएसएमईज पर। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। रमा जी, फॉर्मल चैनल से फाइनेंस प्रमुख चुनौतियों में शामिल रहा है, पर क्या एक्सेस टू फाइनेंस में आप इस बदलते दौर में सुधार देख रहे हैं? Actually, MSME finance is a priority sector lending, and here we do have access to banks, and because of again introduction of various schemes like CGT MSME and Stand Up India, which are earmarked for women entrepreneurs, there is a great improvement in access to finance. But again, awareness with regards to the schemes also is very low. I think even bankers need a little bit of training because they don't understand behind the story, what is the need for financing women. Inclusive growth only happens if women's participation improves, and this participation improves only access to credit is made possible. रामा जी, वैसे देखा जाए तो विमेन एमएसएमईज को कोलैटरल अरेंज करने में मुश्किल होती है। उनके नाम प्रॉपर्टी का भी इशू रहता है। ऐसे में कुछ एंटरप्रेन्योर्स के साथ में आकर यानी एक ग्रुप फॉर्म करके कोई प्रोडक्ट बनाना, इस पर आप क्या शेयर करना चाहेंगे? In the existing scenario, there are schemes which are really beneficial, like PMEGPY, which I can mention because we have vast experience in making clusters under PMEGPY and access to given 2 crores, 7 entrepreneurs coming together and making one product. They can access up to 2 crores loan, each taking around 30 lakhs to 40 lakhs, they can access. So this sort of awareness need to be built up in women. Coming together is what I keep telling, team as a team and as a cluster, they can really overcome all these issues. So we keep guiding them to become a cluster approach or to become a group where they can access bank finance. So even SHGs with their savings, they can access technology. Like for example, one of the SHG groups, they formed into a group and they are now making a fortified rice
and no issue with the bank, no issue with the financial institutions. So these kind of best practices need to be shown. अनीशा जी, इस अनसर्टन ग्लोबल माहौल के बीच इंडिया को एक ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वर्कफोर्स में विमेन की पार्टिसिपेशन अहम होगी। आपका लास्ट वर्ड। सौरभ, काफी मोमेंटम है, बहुत मोमेंटम है। अभी जब मैंने ये बुक लॉन्च कर दी हूँ एंड आई एम गोइंग आफ्टर फ्रॉम फोरम टू फोरम, प्राइवेट सेक्टर में बहुत मोमेंटम है। डिवर्सिटी को लेकर के इतने इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं कि जो हमारे टाइम में बिल्कुल सुनने को भी नहीं मिलते थे। इतने फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हैं एंड कंपनीज ने खुद ही टारगेट लिया हुआ है। बुक में एक स्टोरी भी है MG मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ ओनली विमेन क्रू मेक्स एवरीथिंग। पूरी जो बड़ी मैचो SUV कार्स जो मेन चलाते हैं, दे आर मेड बाय एन ऑल विमेन टीम। तो इसी नोट पर हम आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। SME एक्सप्रेस में पार्टिसिपेट करने और अपने व्यूज, इनसाइट शेयर करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। अनीशा मोटवानी, फाउंडर STN वेंचर्स, और K रमादेवी, प्रेसिडेंट एलीप, थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।